हाँ यस डियर स्टूडेंट्स, हमने कल डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड के बारे में डिस्कस किया। ऐसा थोड़ा और कंटिन्यूस में हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट आज की फिर नंबर है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है काफ़ी। ठीक है, इफ E इज ए कनेक्टेड सबसेट ऑफ स्पेस X, connected set of स्पेस X, ये स्पेस टोपोलॉजिकल स्पेस भी हो सकता है और यूनिटेड स्पेस भी हो सकता है। एंड F इज एनी सेट and F is any set such that E is subset of F is subset of E closure. E is subset of F is subset of E closure. Then to F is also connected. Then to F is also connected. F is also connected. Particularly E closure is connected. Particularly E closure is connected. चलिए बेसिकली हमें दिखाना है कि F कनेक्टेड है, कंट्राडिक्टरी हमने माना कि F कनेक्टेड नहीं है या डिसकनेक्टेड है। कंट्राडिक्टरी वी एज्यूम दैट या कंट्रापोजिटिवली वी एज्यूम दैट कंट्रापोजिटिवली वी एज्यूम दैट F is not connected. F is not connected. Or disconnected. Or disconnected. Should there exist two non-empty set A and B, there exist two non-empty set A and B such that F is equal to A union B, और वो कैसे होने चाहिए? सेपरेटेड मीन्स A इंटरसेक्शन B क्लोजर इज इक्वल टू 5 एंड A क्लोजर इंटरसेक्शन B इज आल्सो इट शुड बन के नीचे दोनों को कंबाइन करेंगे। आल्सो बेसिकली E सबसेट है F का, या कि ये E सबसेट है F कितना? A यूनियन B का। A यूनियन B का सबसेट है, इसका मतलब हुआ E इज सबसेट ऑफ A और E इज सबसेट ऑफ B। मैंने कल प्रूफ कराया था, अगर कोई सेट कनेक्टेड सेट है और वो सबसेट है दो सेट के यूनियन का, तो वो पूरा पूरा या तो पहले में जाएगा या दूसरे में जाएगा, उनके इंटरसेक्शन में
नहीं जाएगा। सपोज करिए आप इसे लेते हैं विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी we assume that E is subset of A. That means E closure is subset of A closure. That means E closure intersection B is subset of A closure intersection B. Also first say A closure intersection B is equal to 5. या कहिए E closure intersection B is subset of 5, but 5 is subset of E closure intersection B. इसका मतलब हुआ कि E closure intersection B is equal to 5. इसे बन गया। Also F सबसेट है E क्लोजर का। Also F is subset of E closure. That means A union B is subset of E closure. या कहिए A union B सबसेट है E क्लोजर का, तो B सबसेट होगा E क्लोजर का, और इससे आप ये कंक्लूजन इजीली निकाल सकते हैं कि E क्लोजर का अगर B के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो B आएगा। इसे सेकंड कह लीजिए, इसे थर्ड। तो सेकंड और थर्ड से ये कंक्लूजन निकला कि B किसके इक्वल है, 5 है। So from second and third, B is equal to 5. This is contradiction, क्योंकि A और B कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। Which is contradiction? Contradiction किस बात का है? Because B is a non-empty set. Because B is a non-empty set. Because B is a non-empty set. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. और supposition क्या था हमारा कि F disconnected है। Okay, so F is connected. F कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, जबकि E सबसेट ऑफ F सबसेट ऑफ E क्लोजर है और E कनेक्टेड सेट है। Also we can write yes, E सबसेट ऑफ E क्लोजर होता है, और कोई भी सेट अपने आप का सबसेट लिखा जा सकता है, तो इसमें F की जगह क्या आ गया, E क्लोजर। So E closure is also connected. So E closure is also connected. So E closure is also connected. That's it. Okay.
चलिए नाउ आज का थ्योरम 2 देखिए। थ्योरम 2 if C lambda belongs to arbitrary is a family of connected subset is a family of connected set such that intersection of C lambda belongs to arbitrary is not empty and then prove union of C lambda belongs to arbitrary is also the family of connected sets. Is also the family of connected set. Family of connected set. Is also the family of connected set. देखिए ग्रुप में सपोज करिए लेट हमने इसे ई से रिकॉल किया किसे यूनियन ऑफ सी लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी वी विश टू प्रूव दैट दिस सेट यानी ई इज कनेक्टेड वी विश टू प्रूव that E is connected. Contradictory, we assume that E is not connected. Contradictory, we assume that E is not connected so there exist non-empty disjoint open set G1 and G2 so there exist non-empty open set G1 and G2 such that yes E is equal to G1 union G2 और दोनों कैसे हैं नॉन एम्प्टी है ओपन है और डिस्जॉइंट है या क्लोज भी ले सकते हैं आल्सो देन C lambda intersection G1 and C lambda intersection G2 वे लैम्डा इज आर्बिट्रेरी ये भी कैसे होंगे ओपन होंगे क्योंकि G1 G2 ओपन है और कैसे होंगे डिस्जॉइंट होंगे किसमें फैमिली C लैम्डा में आर आल्सो disjoint
open in family C lambda. In family C lambda. Also, C lambda intersection G1 union C lambda intersection G2. That means G1 union G2 intersection C lambda और G1 union G2 E या यूनियन ऑफ C lambda और C lambda के साथ इंटरसेक्शन तो C lambda ही आ जाएगा। दोनों के दोनों ओपन है, डिस्जॉइंट है, नॉन एम्प्टी है। ओके, आल्सो नॉन एम्प्टी लिख लीजिएगा क्योंकि G1 G2 नॉन एम्प्टी है। ओके, तो C lambda इनके यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो C lambda कैसा होना चाहिए? डिस्कनेक्टेड होना चाहिए, बट C lambda इज कनेक्टेड होना चाहिए था कैसा? डिस्कनेक्टेड। इसके अकॉर्डिंग इसका ये मतलब होता है, और सब कंडीशन तो ठीक है कि इनमें से कोई एक कैसा है? एम्प्टी है। शो एनी वन फ्रॉम C lambda intersection G1 and C lambda intersection G2 is empty. मैंने माना लेट C lambda intersection G1 is empty, यानी 5. Let C lambda intersection G1 is 5 equal to 5. इसे आप जो भी कहना चाहें सेकंड कह लीजिए। then by second five union C lambda intersection G2 is equal to C lambda. या कह सकते हैं C lambda intersection G2 is equal to C lambda. इसका क्या लैम्डा मतलब हुआ? इसका मतलब C lambda सबसेट है G2 का, इज सबसेट ऑफ G2 या यूनियन ऑफ C lambda, लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी भी सबसेट होगा किसका? G2 का, क्योंकि हर C lambda उसमें आता है। और यूनियन ऑफ C lambda आपने क्या माना था? E कैसे लिखा जा सकता है? G1 यूनियन G2 1 से E is equal to G1 union G2. So this is G1 union G2 is subset of G2. ये कब होगा? जब G1 कैसा हो? G1 कैसा हो? नॉन एम्प्टी हो। डिस्जॉइंट तो है ही, सो G1 is equal to 5. So G1 is equal to 5. Okay? Which is contradiction? क्योंकि G1 G2 कैसे होने चाहिए? नॉन एम्प्टी होने चाहिए। So our supposition is wrong. Let's show E जो कि यूनियन ऑफ C lambda था कैसा होगा? कनेक्टेड होगा। Which is contradiction? So our supposition is wrong.
So our supposition is wrong. So our supposition is wrong and show our supposition is wrong and show E जो कि यूनियन ऑफ सी लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्रेरी है इज कनेक्टेड. ऐसा है कनेक्टेड. ओके इट शुड. जी चलिए थ्योरम थर्ड लिखिए इसमें. If to prove if x is connected and f is a function from x to y, then f image of x is also connected in y if f is continuous. Then fx is connected in y if f is continuous. ये इसकी इमेज है. दिस इज सपोज करके दिस इज fx. f x से y में है तो f इनवर्स y से x में होगा. जो कि x कनेक्टेड है. राइट. तो किसी भी कनेक्टेड स्पेस की इमेज कनेक्टेड होती है अगर फंक्शन कैसा है कंटीन्यूअस. इन जनरल वे हम कह सकते हैं. एज्यूम कर लीजिए कंट्राडिक्टरीली एज्यूम दैट we assume that fx is disconnected. fx is disconnected. So there exist two disjoint open set G1 and G2. Disjoint
open set G1 and G2 such that fx intersection G1 is non-empty, fx intersection G2 is non-empty, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी और दोनों का यूनियन fx इंटरसेक्शन G1 यूनियन fx इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू fx। अगर ये डिस्कनेक्टेड है तो ये डिस्कनेक्शन बनना चाहिए इसमें। नाउ फाई f इनवर्स फाई के इक्वल लिखा जा सकता है। दिस इज f इनवर्स फाई, फाई मींस दिस fx intersection G1 intersection fx intersection G2, या इसे लिख सकते हैं f इनवर्स fx इंटरसेक्शन G1 इंटरसेक्शन G2, या इसे लिख सकते हैं f इनवर्स fx इंटरसेक्शन f इनवर्स G1 इंटरसेक्शन G2। It should be f inverse fx means x, f inverse G1 intersection f inverse G2. This is f inverse G1 intersection f inverse G2, जो कि x तो पूरा स्पेस है। This is fine. Okay? इसे बंद कर लीजिए। Also स्पेस x को क्या लिख सकते हैं? दिस इज f इनवर्स fx लिखा जा सकता है, और f इनवर्स fx कितना? दिस इज fx इंटरसेक्शन G1 यूनियन fx इंटरसेक्शन G2, या दिस इज f inverse fx intersection G1 union G2. This is f inverse fx intersection f inverse G1 union G2. f inverse f, this is x intersection f inverse G1 union f inverse G2. Yeah, this is f inverse G1 union f inverse G2. इसे आप सेकंड कह सकते हैं। G1 G2 ओपन है तो और f कंटीन्यूअस है तो f इनवर्स G1 और f इनवर्स G2 भी x में कंटीन्यूअस होंगे। Here f is continuous and G1 G2 are open। कैसे हैं? ओपन। Should f inverse G1 and f inverse G2 are open in x। इसका ये मतलब हुआ कि ये दोनों के दोनों ओपन हैं और कैसे हैं? डिसजॉइंट हैं, और x को उनके यूनियन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट और सेकंड से x कैसा होना चाहिए? डिस्कनेक्टेड होना चाहिए। शो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, शो बाय फर्स्ट एंड सेकंड
X is disconnected. So by first and second, X is disconnected. But it is contradiction because X is connected. Which is contradiction? चूंकि X कैसा है, कनेक्टेड है. So our supposition is wrong. इसका मतलब इसकी f इमेज यानी fx भी कैसी होगी, कनेक्टेड होगी. किसमें? y में, चूंकि उसे हमने डिस्कनेक्टेड मान के ये सब किया था. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong and so fx is connected in y. And so fx is connected in y. It should be. And so fx is connected in y. Okay, it should be.